Good morning, friends. Once again, welcome to our English break. So, dear friends, before starting today's lesson, today's unit, I want to ask you some questions. Okay, all right. So, now tell me, do you love to read stories? Yes. Do you love to read and listen stories? Yes. Can anybody tell me any short story? Can anybody of you or from you? That's great. Good. So, dear students, why do we learn or listen stories? Yes, because when we listen stories, we get knowledge. Very good. Again, we get fun. Okay. Okay, interesting. Some stories are interesting. Okay. Again, yes. Some stories are of moral value. Okay, all right. So, can you give me some names of the stories or famous stories or the characters of the stories? Yes, Sindbad, Sindbad the she. Okay, Sindbad the sailor. Very good. I know you like cartoon very much. Okay, can you tell me some names of some cartoons? Okay, Doraemon, Motu Patlu. All right, Ben 10. Okay. Hmm. Okay. So, dear students, all these are very fun. Okay, all these cartoons and stories. Okay, so it gives us and it creates more interest in us, and that's why we used to watch and listen these things, these videos or these stories. Okay, so in our Indian culture or Indian stories, there was very famous people and famous persons are there on whose life so many stories are written. So can you give me some name? One serial is also there. Yes, Tenali Raman. Okay, Tenali Raman. What type of person he was? Tenali Raman was, yes. Can anybody? Tenali Raman was a very clever and wise person. Very good. Also, we have read about the Gopal Bhand. Okay, he was also very great and witty person. Okay, have you heard the name of the Badshah? Yes, Mughal Emperor. Correct. Who was the Mughal Emperor? One of the famous? Yes, Akbar. And in Akbar's court, in Akbar's palace, there was 9 gems, and one of the 9 gems was Birbal. Okay, and we heard lot of stories, witty stories, fun stories, okay, about the Akbar and Birbal, and those are very well known and famous stories of Akbar and Birbal. Okay, so dear students, today we are going to talk about one of the story of the great Akbar and Birbal. Okay, so unit 8. So today we are going to learn about the story of Akbar and Birbal from unit number 8, going round the earth in a day. Okay, so please open page number 58 of your textbook and let's start. So dear friends, when the topic name is given going round the earth in a day, so what do you think first? आपको सबसे पहले क्या ध्यान में आता है इस टॉपिक को देखने के बाद में? ओके, गोइंग राउंड द अर्थ इन अ डे मतलब पूरी पृथ्वी को घूमना, वो भी कितने दिनों में? हाउ मेनी डेज? इन अ डे मीन्स इन वन डे. सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों बताइए, क्या इज इट पॉसिबल टू राउंड द अर्थ इन अ डे? क्या ये पॉसिबल है कि पूरी पृथ्वी का चक्कर एक दिन में लगाया जा सकता है? टेल मी. Oh, it's impossible. Correct. Okay, because earth is so vast. Okay, so many lands and so many oceans are there, rivers and there, mountains are there, and how when even we haven't seen our Maharashtra, or even if we haven't seen our India. Okay,
It takes too many days to go through all these things. So how can we go round the earth in a day? Okay, so let's see. This is a very weighty story of, though it is very impossible for us, but for Akbar and Birbal, Birbal has the correct answer. Let's see how Birbal has gone, or he had gone round the earth in a day. So let's read. So please open page number 58 and I am going to explain each line. So ready to read? Okay. So read after me and listen carefully. Okay. Akbar was a wise and wonderful emperor. Okay. He was his people's emperor. He loved his people and his people loved him. Every day his court was full of people. Okay. So what type of person emperor Akbar was? So Akbar was a wise and wonderful emperor. बहुत ही अच्छा और शानदार एम्पेयर थे. ओके, ही वॉज हिज पीपल्स एम्पेयर. वो लोगों का सम्राट था, लोगों का राजा था. ही लव्ड हिज पीपल एंड हिज पीपल लव्ड हिम. ओके, सो ही लव्ड हिज पीपल. वो अपनी प्रजा को, पीपल मीन्स हिज प्रजा को वो प्यार करता था, जनता को प्यार करता था, और जनता भी, उसकी प्रजा भी उससे प्यार करती थी. एवरी डे हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ पीपल. हर दिन कोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट? कोर्ट इज द पार्लियामेंट ऑफ द ministers, where ministers and the king or the emperor used to discuss and give some decisions and orders. Okay, so दरबार, जिसे हम दरबार कहते हैं. एवरी डे हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ पीपल. लोग हमेशा भरे हुए थे. समटाइम्स दे केम टू टेल हिम देयर प्रॉब्लम्स. वाई द emperor's court was full of people? Because many times they came to tell him their problems. मतलब अपनी समस्या सुलझाने के लिए वो वहाँ पर आते थे, लोग आते थे. दे ट्रस्टेड देयर एम्पेयर एंड न्यू ही वुड बी एबल टू हेल्प देम. पीपल ट्रस्टेड देयर एम्पेयर. ओके, सो पीपल ट्रस्टेड ऑन अकबर एंड न्यू ही वुड बी एबल टू हेल्प देम. और वो जानते थे कि हमारी एम्पेयर हमारी मदद जरूर करेंगे. समटाइम्स देयर वॉज फन एंड लाफ्टर एंड म्यूजिक इन द कोर्ट. कभी कभी, बहुत बार दरबार में फन मतलब मजाक भी होता था, और जोर से लोग हंसते भी थे, और संगीत का भी आनंद लोग उस राज दरबार में लेते थे. ओके, सो ये सब चीज़ें होती थी. ऑफन क्लेवर मेन केम एंड डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट थिंग्स. कभी कभार और बहुत क्लेवर मेन मतलब जो दुनिया के विद्वान लोग थे, होशियार लोग थे, वे वहाँ पर आते थे एंड डिस्कस इम्पोर्टेंट थिंग, और महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा करते थे. दे आंसर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और वे विद्वान कठिन प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे. जो अनसुलझे रहस्य उनको भी वो सुलझाते थे, डिस्कस करके, आपस में चर्चा करके. पीपल लर्न अ लॉट फ्रॉम द थिंग्स दे सेड. और दरबार में, राज दरबार में जो भी बातें विद्वानों की होती थी, उनको सुनकर लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा था. ओके, सो व्हाट हैपेंड इन दिस वे? वी हैव द अकबर्स कोर्ट. वन डे एज यूजुअल मेनी पीपल हैड गैदर्ड इन द कोर्ट. हर दिन की तरह क्या हुआ, एक दिन बहुत सारे लोग कोर्ट में, दरबार में, राज दरबार में जमा हुए थे. अ फेमस एस्ट्रोलॉजर हैड come there from a distant country. Okay, a famous astrologer. Do you know the meaning of astrologer, dear friends? So meaning of astrologer is someone who studies the stars. ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टार्स की, तारों और ग्रहों की पढ़ाई करता है. ओके, जिसको हम एस्ट्रोलॉजर, वो पढ़ाई करके वो भविष्य भी बताता है. ओके, उसको तारों के बारे में पूरा ज्ञान होता है, और सितारों के बारे में, और प्लैनेट्स के बारे में. सो अ फेमस एस्ट्रोलॉजर, जिसे हम ज्योतिषी भी कहते हैं, अ फेमस एस्ट्रोलॉजर हैड कम देयर फ्रॉम अ डिस्टेंट कंट्री. डिस्टेंस मीन्स बहुत दूर की कंट्री, फार अवे. ओके, सो वहाँ बहुत दूर के देश से वो आया. ही वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. ओके, और दैट एस्ट्रोलॉजर वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. सो सूर्यमाला में, ओके, सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो भी स्टार्स है और प्लैनेट्स है, उनके बारे में वो बातें कर रहा था. ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. उसने धरती के आकृति के बारे में भी कहा, शेप ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज राउंड सेड द लर्न मैन. उस एस्ट्रोलॉजर, ये लर्न मैन
ये एडजेक्टिव है, ये मैन नाउन है। ओके, सो ये एस्ट्रोलॉजर के लिए यूज़ किया गया है। उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि अर्थ कैसी है, राउंड है। सो इस पर राजा ने क्या कहा, अकबर ने, यू से द अर्थ इज राउंड, सेड अकबर। आपने कहा कि धरती गोल है। देन इफ अ पर्सन ट्रेवल्ड स्ट्रेट एंड कंटिन्यूड इन द सेम डायरेक्शन ही वुड कम बैक टू द सेम प्लेस, इजंट दैट सो। आपने कहा, हे महान व्यक्ति, हे विद्वान, आपने कहा कि धरती गोल है, इसका मतलब ये है, राजा अकबर ने कहा कि इफ़ अ पर्सन ट्रैवल स्ट्रेट, मतलब अगर कोई व्यक्ति सीधा प्रवास करता है धरती पर, एंड कंटिन्यूड इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में वो कंटिन्यू जाता है, सो ही वुड कम बैक टू द सेम प्लेस, क्या वो एक ही उसी जगह जहाँ से वो गया था उसी जगह पर वापस आएगा? नहीं, क्या यही कहना चाहते हो ना? सो द एस्ट्रोलॉजर सेड, ऑफकोर्स सेड द एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल सही महाराज, बट इट वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही महाराज, लेकिन इसके लिए उसको काफ़ी समय लगेगा। ही वुड हैव टू क्रॉस ओशंस, क्लाइंब माउंटेन्स एंड गो थ्रू फॉरेस्ट इफ ही वॉज टू फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। महाराज बिल्कुल, वो तो जा तो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगेगा। ही वुड हैव टू क्रॉस ओशंस, इस बात को करने के लिए उसको बड़े बड़े महासमुद्र को क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा। क्लाइंब माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। एंड गो थ्रू फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े जंगलों से, डरावने जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा। इफ़ ही वॉज टू फॉलो द स्ट्रेट पाथ, अगर उसको सीधे रास्ता कर पकड़ना है तो इन सभी चीज़ों को पार करते हुए उसे जाना पड़ेगा। और एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इसमें काफ़ी समय लगेगा। ओह दैट इज़ इम्पॉसिबल, सेड द एम्पेरर। सम्राट अकबर ने कहा कि दैट इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल अशक्य है, असंभव है ये। ही कुड सेल अक्रॉस द ओशंस, मेक टनल्स थ्रू द माउंटेन्स एंड ट्रैवल थ्रू फॉरेस्ट ऑन एन एलिफेंट। ही कुड, वो कर सकता, सेल अक्रॉस द ओशंस, मेक टनल्स, टनल्स मीन्स डियर फ्रेंड्स द मीनिंग ऑफ पैसेज फॉर ट्रेन्स एंड कार्स थ्रू हिल्स और अंडरग्राउंड, जिसे हम भुयार कहते हैं या जिसे हम बोगदा कहते हैं, जो पहाड़ों के अंदर से कार, ट्रेन्स वगैरह जाने के लिए बनाया जाता है। दैट इज़ द टनल्स थ्रू द माउंटेन्स एंड ट्रैवल थ्रू फॉरेस्ट ऑन एलिफेंट, और फॉरेस्ट में से उसको किससे गुजरना पड़ेगा? एलिफेंट पर जाना पड़ेगा। देन ऑल्सो इट लुक्स वेरी इम्पॉसिबल, इट वुड स्टिल बी इम्पॉसिबल, अगर ऐसा करेगा, राजा ने कहा कि ये करना पड़ेगा तब ये हो सकता है। ओके, दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ओके सॉरी, मैंने इम्पॉसिबल कहा था। सो राजा ने कहा था कि दैट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है, लेकिन कब? अगर वो सेल अक्रॉस द ओशंस, मतलब समुद्र में वो जहाज़ से जाए, और जहाँ पहाड़ें आएंगी, बड़े बड़े पर्वत आएंगे, वहाँ पर वो बोगदा खोद कर वो सीधा टनल्स बनाकर माउंटेन से जाए, और जब भी फॉरेस्ट आएंगे तब वो एलिफेंट पर वहाँ पे राइड करे, लेकिन ही मस्ट गो इनटू द स्ट्रेट पाथ, देन इट विल बी पॉसिबल। ओके, जब इज इट पॉसिबल, देन द एस्ट्रोलॉजर सेड इट वुड स्टिल बी इम्पॉसिबल टू कीप ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, सेड द एस्ट्रोलॉजर। फिर भी एस्ट्रोलॉजर ने कहा, फिर भी अगर सीधा भी जाता है और ये टनल्स और ओशंस को क्रॉस भी करता है और माउंटेन एंड फॉरेस्ट को भी क्रॉस करता है सीधे में, तो भी स्ट्रेट पाथ में, मतलब सीधे रेशा में, सीधे लाइन में जाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओके, नॉट पॉसिबल। वाई डू यू से दैट, सेड अकबर। अकबर ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इट वुड टेक ईयर्स टू कंप्लीट सच ए जर्नी, ऐसी जर्नी करने के लिए काफ़ी सालों लग जाएंगे, काफ़ी साल लग जाएंगे। ओके, जर्नी मीन्स टू ट्रैवल। ओके ओके, सो इन दिस वे दिस डिस्कशन was going on. Let's see what happened next. So what happened next in the story we will see in the next period. Okay, till then dear students, read the story and try to find out difficult words meanings and complete the story with your own understanding and try to get its meaning. See you next day. Okay, next page. Thank you.